Good morning, students. This is the second part of alternative centers of power. In last video, we have discussed about European Union and ASEAN as well. In this video, we will try to discuss about the relationship between India and ASEAN and the rise of Chinese economy, and eventually in last we will discuss about the Indo-ASEAN relationship and the developments took place between both neighbors. So let us start. About Indo-ASEAN relationship, then it is point to be noted that India was not interested in ASEAN till 1991 because India had a good friendship with USSR. We have signed a friendship treaty with USSR in 1971. Even though India was a member or pioneer country of name, but we had maintained our friendship or relationship with USSR. But in 1991, USSR got breakdown, so we have to shift our friendship poles also. In 1991, our Prime Minister P.V. Narasimha Rao launched a policy which is known as Look East policy. Here is a very good chronological picture. We will discuss about all these points or years one by one. So students, in 1991, we have started Look East policy. Look ईस्ट पॉलिसी 1991 एक ईयर यहाँ मेंशन नहीं किया गया है. सो लुक ईस्ट पॉलिसी हम लोग 1991 में, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कौन प्राइम मिनिस्टर थे? पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सी, वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. 1995 की हम लोग बात करते हैं. इंडिया बिकम्स फुल डायलॉग पार्टनर ऑफ आसियान. 1996 में आते हैं. इंडिया पार्टिसिपेट्स इन आसियान रीजनल फोरम. ARF कब बना था? 1994 में बना था. वापस आगे आते हैं. फर्स्ट आसियान इंडिया समिट हेल्ड इन फिनोपेन, अपन बात कर रहे हैं 2003 में. इंडिया एक्सीड्स टू द ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन, TAC, ASEAN India Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation, signed to lay the basis for an ASEAN India Free Trade Agreement, FTA को लेकर भी हम लोगों ने बात की. 2005 पर आते हैं. 2005 में इंडिया जॉइंस ईस्ट एशिया समिट EAC. 2010 पे आते हैं. ASEAN India Trade and Good Agreement enters into force. 2012 पे आते हैं. ASEAN and India upgraded the relations to a strategic partnership. 2014, India appoints the first Indian ambassador to ASEAN. 2015, ASEAN India Trade and Service Agreement and ASEAN India Investment Agreement enters into. Students, a remarkable point is missing here. Act East policy. What were the reasons? We will discuss about it briefly. Actually, as I told you earlier, in 1991 we have launched Look East policy in the leadership of our Prime Minister P.V. Narasimha Rao, but we were very passive towards ASEAN and we were not able to avail the opportunities or the benefits which may be generated or created by ASEAN. So in 2015, our late foreign minister thought that we have to change, we have to take some steps towards this ASEAN. So we have launched a new policy which is known as Act East policy. In this policy, we will start some development projects in ASEAN. In 2018, India-ASEAN celebrated 25 years of ASEAN and India relationship in Delhi. सो अभी तक हमारी ये प्रोग्रेस रही है. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की यहाँ साइट से मैंने एक नोट लिया है जिसको आप भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. नोट में ब्रीफली क्या मेंशन किया गया है इसके बारे में बताती हूँ. पूरी क्रोनोलॉजी जो हम लोगों ने यहाँ वेस्टर्न जो अपना पिक्चर है उसमें हम लोगों ने डिस्कस की है, वही सेम पिक्चर को, सेम क्रोनोलॉजी को यहाँ पे मोर और लेस डिस्कस करने की कोशिश की है. और इसमें ये भी बताया रखा है कि कौन कौन से रीजनल फोरम्स यहाँ पे हैं जिसमें इंडिया का एंगेजमेंट रहता है. यहाँ पे लुक ईस्ट पॉलिसी जो कि यहाँ पर 1992 वाला, 1991 एंड 2 वाला जो मिसिंग था उसको भी डिस्कस किया है, एंड विच इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वो भी इसमें मैंशनड है. 2014 में डिक्लेरेशन हुई थी और 2015 में हम लोगों ने इसको इनएक्ट में ला दिया. इसके अलावा यहाँ पे दूसरी भी बात कर रखी है कि कौन कौन से फोरम्स हैं जहाँ पर कि इंडिया और आसियान कंट्रीज़ जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म शेयर करने का काम करती हैं.
ऊपर और भी बात कर रखी है कि आसियान के मिशंस क्या क्या हैं, इनके बारे में आप चाहें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की साइट से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। Now in this chapter we will discuss about the third pole or third alternative of the world power or center of power। जैसे ही आपके चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है उस फर्स्ट पेज पे आपको ये फ़ोटो मिलेगा। ये फ़ोटो मैंने वहीं से पिक किया है और ये फ़ोटो शो करने का काम करता है कि कैसे चाइना ने अपनी इकोनॉमी को कन्वर्ट किया है। दिस इज़ फ्लैग ऑफ चाइना, ठीक है, ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ लार्जर क्वेश्चन कि चाइना इस सिचुएशन से यहाँ पर कैसे पहुँचा। इंडिया के भी 2 साल के बाद में इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, चाइना को 1949 में इंडिपेंडेंस मिला। इंडिया की सिचुएशन आज इम्प्रूव हुई है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, लेकिन आज भी इंडिया ऐसे नहीं कह सकता है कि हम लोग सुपर पावर बन गए हैं, ठीक है। लेकिन चाइना आज ये क्लेम करने की कंडीशन में है दैट चाइना मे बी अ सुपर पावर टिल 2040। ये क्यों आया, कैसे आया, चाइनी की इकोनॉमी में ये अपलिफ्टमेंट कैसे दिखा, ये बूम कैसे दिखा कि चाइना इस सिचुएशन से, इस फार्मल लाइक पिक्चर से वो एक इंडस्ट्रियल हब बन गया, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बन गया। यही टाइटल है आपकी इस एनसीईआरटी बुक का, विच इज़ राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी। वन बाय वन हम कुछ एक रीजंस की बात करेंगे। सबसे पहला, जायंट पॉपुलेशन, स्टूडेंट्स पॉपुलेशन जिसकी भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे मैं पॉपुलेशन की पॉजिटिव साइड की बात कर रही हूँ, एक एक्टिव पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ जो कि लिटरेट है, जो कि स्किल्ड पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। चाइना की पॉपुलेशन, चाइना इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर किसी की है तो नंबर 1 पे आता है चाइना एंड नंबर 2 पे है इंडिया, ठीक है। और चाइना की पॉपुलेशन क्योंकि स्किल्ड भी धीरे धीरे होती जा रही है, टेक्नोलॉजी उनके पास बहुत अच्छी है, डेडिकेटेड है, दैट्स वाई चाइना अपनी इस डेमोग्राफिक डिविडेंड के जो बेनिफिट्स हैं उसको अवेल करने में सक्सेसफुल रहा है। दिस इज़ नॉट ओनली अ रीज़न, देयर आर मैनी रीजन्स बिहाइंड दिस rise of Chinese economy। We will discuss about all these points one by one। इसके बाद अगर अपन देखें स्टूडेंट्स, स्टोरी मैंने आपको शायद बताई नहीं बताई, आई डोंट नो, बट जैसे ही चाइना को 1949 में चाइनीज़ रेवोल्यूशन होता है, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस मिलती है, वैसे ही चाइना को दूसरी कंट्रीज़ जस्ट लाइक इंडिया तो उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर लेती हैं, लेकिन यूएसए चाइना को रिकॉग्निशन प्रोवाइड नहीं करता है। रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने का मतलब है कि यूएसए ने माना दैट जो चाइना जिसको सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस मिली है, ठीक है, जहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ है वो चाइना जो है वो कैप्चर्ड चाइना है, वो चाइना चाइना नहीं है। वो तो काउंट किसको करते थे, जो चाइना को रूल करने, एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो चांगकाई शेक चलाते थे उसको ही वो मानते थे कि वो चाइना है। चाइना को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने का काम एज अ नेशन नहीं किया था, लेकिन 1972 में अमेरिका को भी चाइना की जो राइजिंग पावर है वो अमेरिका को मालूम पड़ गई थी और अमेरिका ने धीरे धीरे करके 1972 में अपने आप से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया और 1972 में उसने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की और चाइना की सॉवरेनिटी को, चाइना के नेशनहुड को एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कर ली, रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ताइवान में चांग काई शेक हु वॉज अ रूलर ऑफ चाइना बिफोर 1949 और ड्यूरिंग दिस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, तो उन्होंने जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल 1949 के बाद एस्टैब्लिश की थी, चाइना का ही एक नेबरिंग एरिया है ताइवान, तो उसको ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने उससे रिकॉग्निशन वापस ले ली। अमेरिका दोनों को ही रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने का काम करता है और ये ही यूएसए और चाइना के बीच में एक मैटर ऑफ डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट है। चाइना की जियो रिसोर्सेज की बात करेंगे, जो कंट्री जितना बड़ा होता है उसके पास जियोग्राफिकल जो रिसोर्सेज हैं, जो जियो रिसोर्सेज हैं वो उतनी ही ज़्यादा, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो उतनी ही ज़्यादा रहते हैं। चाइना के पास भी जियो रिसोर्सेज कौन कौन से हैं उसकी अपन बात करते हैं, ठीक है। तो चाइना के पास रिसोर्सेज की बात करें, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक के उसके जियोलॉजिकल रिसोर्सेज माने गए हैं जिसके की बेनिफिट्स को अवेल करने का काम किया है चाइना ने। चाइना की टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव्ड है कि चाइना इंडिया से
कहीं ज़्यादा चीप रेट पर वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। चाइना ने 1978 में ओपननेस की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। ओपननेस की पॉलिसी का मतलब क्या होता है ब्रीफली बता देती हूँ। हम लोग इवन दो पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट रिवीजन एक हो जाएगा, ठीक है। वन टाइप ऑफ इकोनॉमीज क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि कोई कंट्री है, उस कंट्री की जो बाउंड्रीज हैं वो एक्सटर्नल ट्रेड, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए वो क्लोज्ड रहेंगी, ठीक है। किसी कंट्री की जो बाउंड्रीज हैं वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए क्लोज्ड रहेंगी, न किसी से बिजनेस होगा, न किसी से एक्सपोर्ट करेंगे, न किसी को इम्पोर्ट करेंगे, ऐसी बात होती है क्लोज्ड इकोनॉमी में। तो अर्लियर चाइना वॉज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। ड्यू टू दिस पॉलिसी ऑफ ओपननेस चाइना अट्रैक्टेड मैनी इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो स्लोगन आज हम मेड इन इंडिया का लगाते हैं, ठीक है, वही बात चाइना 1978 में कह रहा था। दैट टाइम चाइना के लीडर थे चाउ एंड लाई। इसके अलावा अब इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट क्यों हुई, उसके पीछे रीज़न है जियो रिसोर्सेज ऑफ चाइना एंड जायंट पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी जायंट पॉपुलेशन रहती है, पॉपुलेशन नंबर में ज़्यादा रहती है, वहाँ वेजेस कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स, हाँ। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इनिशियली कम्युनिटी कल्टीवेशन होता था चाइना में, और कोई भी प्राइवेट लैंड की, प्राइवेट कल्टीवेशन की किसी को भी परमिशन नहीं थी। बट इन 1982 जैसे ही चाउ एंड लाई ने पॉलिसी ऑफ ओपननेस इंट्रोड्यूस की, तो उसके लिए मोर एंड मोर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन रॉ मटेरियल ज़्यादा आ नहीं पा रहा था क्योंकि लोगों में इतना मोटिवेशन नहीं था ड्यू टू दिस कम्युनिटी कल्टीवेशन, पहली बात, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एक इम्पैक्ट ये था कि एक तो कम्युनिटी कल्टीवेशन है, इसके अलावा चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जो सरप्लस की डिमांड रहती है इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो सरप्लस चाइना क्रिएट नहीं कर पा रहा था ऑफ रॉ मटेरियल। इस वजह से चाइना ने लोगों को मोटिवेट करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया और एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन हुआ। और जैसे ही एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उसके 2 और 3 इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा जो था, लोग मोटिवेट हुए, और मोटिवेट हुए तो क्या हुआ, जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, पहली बात। दूसरी बात है लोगों की सेविंग्स इंक्रीज़ हुई। लोगों की सेविंग इंक्रीज़ हुई तो उन्होंने इस सेविंग को इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो इस वजह से, इन चीज़ों की वजह से चाइना, जिसकी इनिशियली पिक्चर कुछ ऐसी आपको दिखती है, चाइना ने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चाइना कन्वर्टेड इट्स होल इकोनॉमिक सिस्टम। आगे बात करें, चाइना ने 2001 में WTO की मेंबरशिप ले ली। इवन दो WTO जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ था, चाइना ने 2001 में ली, और WTO जो इन एक्ट आया था वो आया था 1996 में। 1995 में बनकर प्रपोजल तैयार हो गया था कम्प्लीटली, 1996 में वो इम्प्लीमेंट हो गया। चाइना ने WTO की मेंबरशिप ले ली। WTO की मेंबरशिप लेने का एक रिजल्ट ये रहा कि चाइना में ये जो ओपननेस थी वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, फ्री ट्रेड होने लग गया, ठीक है। फ्री ट्रेड होने के बाद जो बिजनेस की टर्म्स, कंडीशन एंड नॉर्म्स थे वो स्टैंडर्ड हो गए, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्म्स चाइना भी फॉलो करने लगा धीरे धीरे करके। तो वेरियस इंडस्ट्रीज़ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हुई टूवर्ड्स चाइना। स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने कहा कि चाइना ने पॉलिसी ऑफ ओपननेस इंट्रोड्यूस की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना ने अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी और पूरा का पूरा चाइना ओपन कर दिया और कहीं पर भी अगर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट चाहे तो वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकता है, ऐसा नहीं था। चाइना का जो ओपननेस की पॉलिसी थी उसने कुछ एक रिलैक्सेशन तो दिया, कंसेशंस तो दिए, लेकिन ये कंसेशंस जो थे वो सेज में ही चलते थे। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इट मीन्स कि कुछ इकोनॉमिक जोन्स को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को चाइना ने आइडेंटिफाई किया, एंड देयर आफ्टर चाइना ने सिर्फ उन स्पेसिफिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ही इन्वेस्टमेंट को, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट को उसने अडॉप्ट किया। एक्चुअली चाइना जो था वो धीरे धीरे, उसको मालूम था कि जैसे ही 1991 में वेरियस कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई फ्रॉम USSR, उन्होंने अपने आप को सॉवरेन डिक्लेयर किया, तो ड्यू टू शॉक थेरेपी, ठीक है, शॉक थेरेपी की वजह से क्या था कि उन कंट्रीज़ की इकोनॉमी जो
डेवलप करने वाली थी, ग्रो करने वाली थी, वो बिल्कुल उनका डिके हो गया, डिक्लाइन हो गया और बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लेशन क्रिएट हुई, फूड स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई। तो चाइना इससे एक लेसन चाइना ने लिया और चाइना ने, आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे बात अच्छे से, चाइना ने स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को ओपन करने की बात की है। इसलिए चाइना का ये वाला बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, अगर बाहर से कोई कंपनी आ रही हैं, अगर एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में आ रहा है तो उसका रिजल्ट जो है वो आपके यहाँ की जो कॉटेज इंडस्ट्री है ना, उस पर बहुत वर्स्ट इम्पैक्ट रहता है। और कई बार कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो धीरे 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 करके इवेंचुअली कम्प्लीटली वो रून कर जाती है, पूरी पूरी ख़त्म हो जाती हैं, उस पर वर्स्ट इम्पैक्ट पड़ता है एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट का। इस वजह से चाइना अपने यहाँ के लोगों को अनएम्प्लॉयड नहीं करना चाहता था और वहाँ वो लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहता था, लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट करना चाहता था। दैट्स वाई चाइना ने सेज को अडॉप्ट किया और इसी सेज में चाइना ने पॉलिसी ऑफ ओपननेस को इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पर उसने एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट की परमिशन दी। रेस्ट ऑफ चाइना में उसने एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट की परमिशन नहीं दी, वहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो थी वही काम कर रही थी, जिसको आज अपन इंडिया में MSME कहते हैं। हाँ, चाइना को लेकर एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा लेसन हम लोग ले सकते हैं। कई बार जब इंटरनेशनल बायकॉट किसी कंट्री के ऊपर लगता है तो कंट्री बहुत ज़्यादा सौरों में चली जाती है और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डीफेम हो जाते हैं और डीफेम होने की वजह से उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन होती है। लेकिन चाइना एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कि कैसे चाइना ने इस नेगेटिविटी को अपनी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। हुआ क्या था, आप लोगों को वैसे ही मालूम है, चाइना एज अ कम्युनिस्ट कंट्री, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री था। अमेरिका ने तो चाइना को एज अ नेशन रिकॉग्निशन भी नहीं दी थी टिल 1972। दोनों कंट्रीज़ के बीच में किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे। अब क्योंकि एक सुपर पावर, देयर वर टू पोल्स ड्यूरिंग 1945 टू 1991, और एक पोल जब आपको रिकॉग्निशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी पावर वीक होगी। और जो कंट्रीज़ USA की अलाइड थी उन कंट्रीज़ ने भी चाइना को रिकॉग्निशन बहुत लेट प्रोवाइड की, और क्योंकि रिकॉग्निशन लेट प्रोवाइड की, चाइना की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा क्लोज थी, चाइना के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे। और चाइना के ऊपर क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी और चाइना वैसे अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ भी करता रहता है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो वो है थियानमान स्क्वायर मैसेकर का। चाइना ने थियानमान स्क्वायर मैसेकर किया था 1989 में, और जिसकी वजह से चाइना बहुत ज़्यादा डीफेम हो गया। और वर्ल्ड की जो पाइनियर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है उन्होंने चाइना के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए थे, और इन रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करने की वजह से वो चाइना से किसी भी तरह का कोई ट्रेड एंड बिजनेस नहीं कर रही थी, इवन दो चाइना ने ओपननेस की पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी थी, ठीक है। लेकिन उसका इम्पैक्ट चाइना पर 1989 के थियानमान स्क्वायर मैसेकर की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब इन रेस्ट्रिक्शंस का चाइना ने पॉजिटिव कैसे बेनिफिट गेन किया उसके बारे में अगर अपन देखें, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस तो चाइना के ऊपर इम्पोज्ड हैं, मतलब कोई बिजनेस हो नहीं रहा है, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, तो अब क्या करेंगे। इस कंडीशन में चाइना ने अपनी जो लोकल इंडस्ट्री थी उसको प्रमोट किया, ठीक है, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया और लोकल इंडस्ट्री में ही उसने मोर एंड मोर इन्वेस्ट करने की बात कही। और इवेंचुअली चाइना ने अपनी लोकल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एम्पावर बना दिया। और क्यों बना पाया, क्योंकि चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड थे। ये स्टोरी कुछ वैसे ही है जब कोई स्टूडेंट बिल्कुल सप्लीमेंट्री आ जाता है या फिर वो क्वार्टरली हाफ ईयरली में फेल हो जाता है तो उसको एज अ चैलेंज लेता है, और चैलेंज लेने के बाद जैसे ही वो पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो बिल्कुल टॉप कर जाता है। ऐसी ही स्टोरी चाइना की है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, चाइना की इस इकोनॉमी के राइज करने की वजह से आज चाइना का अगर अपन फॉरेक्स देखें, ठीक है, अगर चाइना का आज अपन फॉरेक्स देखें, फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज कितने हैं, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज कितने हैं, तो उसकी बात करें तो चाइना आज की डेट में चाइना के पास, मैं कोरोना एरा की बात कर रही हूँ जहाँ पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है, इस कंडीशन में भी आज की डेट में चाइना के पास $3 ट्रिलियन का
$3 ट्रिलियन का फॉरेक्स चाइना के पास है। स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट बात और सुन लो आप, $3 ट्रिलियन का जो चाइना के पास सिर्फ फॉरेक्स है, इंटरनल की तो बात अपन कर ही नहीं रहे हैं कि उसके पास और खुद के युआन्स कितने हैं, हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं डॉलर की, कि चाइना के पास कितना डॉलर अवेलेबल है फॉरेक्स, ठीक है। तो वही चाइना के पास $3 ट्रिलियन है, और ये $3 ट्रिलियन जो है उतनी तो इंडिया की इकोनॉमी भी नहीं है। आ रही है बात समझ में? जितनी इंडिया की इकोनॉमी नहीं है उतना तो कोरोना के एरा में इंडिया के पास फॉरेक्स है। दिस इज़ द सक्सेस ऑफ चाइनीज़ मॉडल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, और दूसरी सक्सेस आप देखें, आज की डेट में इंडियन रुपी का जो रेट है वो चाइनीज़ युआन से कंपेयर करके देखें, देन 1 चाइनीज़ युआन इज इक्वल्स टू 10.83 इंडियन रुपीज़। मीन्स जो चाइना इंडिया के बाद इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है, 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, और 1947 इंडिया, 1949 चाइना, हमसे लेट उसको इंडिपेंडेंस मिली, सॉवरेनिटी मिली, ठीक है। लेकिन फिर भी आज अगर अपन रेट देखें तो 10.8 इंडियन रुपी चाइनीज़ युआन का रेट है। अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ चाइनीज़ सक्सेस। आगे बात करें हम लोग, हाँ, चाइना में पुअर्टी रेट की बात करते हैं। हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि चाइना जो था अर्लियर, चाइना की सिचुएशन कुछ ऐसी थी, यहाँ आप देख सकते हैं फार्मर्स हैं बहुत ज़्यादा, और चाइना इतना एम्पावर्ड नहीं था। लेकिन चाइना ने पुअर्टी रेट को कम करने के लिए, आप यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छा ग्राफ है, CGTN का ये आर्टिकल आपके सामने देखने को मिल रहा है। अंडर दिस आर्टिकल चाइना ने क्या किया, मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, आपको अच्छा से दिखेगा थोड़ा सी चार्ट ग्राफ। हाँ स्टूडेंट्स, चाइना ने जो रूरल पुअर्टी रेट है उसको 2020 तक कंप्लीटली अबालिश करने का टारगेट रखा था, और चाइना बहुत अच्छे से बढ़ रहा था कि चाइना में पुअर्टी रेट लेस देन 2 हो गई थी, लेस देन 2% चाइना की रूरल पुअर्टी रेट हो गई थी। 2020 में कम्प्लीटली अबॉलिश करने वाला था चाइना, लेकिन ड्यू टू दिस कोरोना पैंडेमिक चाइना को थोड़े से और चैलेंजेस फेस करने को अब पड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना के लिए पुअर्टी रिड्यूस करना बहुत बड़ी बात है। ड्यू टू दिस कोरोना पैंडेमिक चाइना के लिए आज भी इतना बड़ा चैलेंज। चाइना की ज्योग्राफी अगर अपन देखें तो वो अर्बन एंड रूरल में क्लियर कट डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा चाइना में। चाइना का जो वेस्टर्न पार्ट है ये कंपैरेटिवली आपको देखने को मिलेगा रूरल पार्ट, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन चाइना के ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो ये आपको अर्बन देखने को मिलेगा, पहली बात। और दूसरी अगर अपन बात करें तो ये वेल डेवलप्ड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चाइना के ईस्टर्न पार्ट का ही ज़्यादा हुआ है, ठीक है। जबकि चाइना का वेस्टर्न पार्ट जो है यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका हुआ नहीं है, और कई सारे यहाँ पे फार्मर्स जो है वो यहीं पर रहते हैं, ठीक है। इसलिए चाइना का एक पार्ट जो है वो तो वेल डेवलप्ड है, ठीक है। वहाँ पे इतना ज़्यादा चाइना को वर्क करने की फ़िलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है। चाइना को अभी काम करने की रिक्वायरमेंट है इस रीजन में, वेस्टर्न चाइना में। दैट्स वाई चाइना आज इस पे वर्क कर रहा है, और चाइना ने 2020 तक पुअर्टी रेट अबॉलिश करने की 0% तक लाने की बात भी चाइना ने कही है। हम लोग आगे बात कर रहे हैं चाइना के और क्या क्या सक्सेस रही हैं। तो आप ये एक मैप देख रहे हैं स्टूडेंट्स। चाइना ने 2013 में अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसको चाइना ने कहा OBOR, ओबोर भी कई लोग इनको कहते हैं, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, ठीक है। अब ये बेल्ट क्या है, रोड क्या है, उसके बारे में अपन देखें। इस मैप को आप अच्छे से देखें, है ना, इस मैप को हम लोग अच्छे से देख रहे हैं। इस मैप में आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से एक रोड निकल रहा है, ठीक है, दिस वन, ये रहा यहाँ से।
चाइना के यहाँ से वेस्ट ईस्टर्न पार्ट से एक रोड निकल रहा है जो कि वेरियस कंट्रीज से होते हुए वो यूरोप तक पहुँच चुका है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। अगेन चाइना का जो ये साउथ ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ से भी अगेन एक रोड निकल रहा है, रोड इन द सेंस मैरीटाइम बाउंड्री, मैरीटाइम रूट निकल रहा है जो कि वापस कहाँ पे एंड हो रहा है इसका, यहाँ इसका भी यूरोप में एंड हो रहा है। ये है क्या स्टूडेंट्स? इन 2013 चाइना इंट्रोड्यूस्ड न्यू मॉडल ऑफ कनेक्टिविटी, न्यू वे ऑफ कनेक्टिविटी विच इज़ नोन एज ओबोर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। इसमें चाइना क्या करेगा? चाइना वेरियस कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करेगा, इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करेगा और उनके वहाँ से ये 2 टाइप्स के रोड्स या फिर रूट्स डेवलप करेगा। पहला बेल्ट रोड की अपन जो बात करते हैं वो आपका लैंड रूट होगा। अब लैंड रूट में क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले रोड बनाना, रोड में ठीक है, रोड बिल्डिंग। इसके अलावा अपन देखें तो रेलवे, ये दोनों ही रूट्स डेवलप करेगा चाइना। कहाँ? जो उसका सरफेस रीजन होगा यहाँ पे। तो ये वाला जो है आपका बेल्ट है, ठीक है, जिसको अपन सिल्क रूट कहते हैं, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। दूसरा, चाइना अपनी मैरीटाइम कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा? मैरीटाइम कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए चाइना वेरियस कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करेगा और लोन प्रोवाइड करके चाइना वहाँ पे कुछ एक पोर्ट्स डेवलप करेगा। उन पोर्ट्स के थ्रू ही चाइना अपना ट्रेड एंड बिजनेस और अपने कार्गोज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, डिलीवरी करने के लिए उसको इजी रहेगा। आप यहाँ देखेंगे, चाहे वो बांग्लादेश हो, ठीक है, चाहे वो श्रीलंका हो, केन्या, हर जगह पर चाइना ने, आप ये बिल्कुल रूट को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक होते हुए चाइना यूरोप तक पहुँच चुका है। यही है चाइना की सक्सेस की। जो चाइना 1949 में इंडिपेंडेंट हुआ था, वो चाइना आज अपने नेबरिंग कंट्री ही नहीं बल्कि नेबरिंग कॉन्टिनेंट तक को भी इकोनॉमिक एड प्रोवाइड कर रहा है और इस इकोनॉमिक एड के थ्रू वो वहाँ के डेवलपमेंट को और ज़्यादा बूस्ट और बूम प्रोवाइड कर रहा है। इवन दो चाइना के इंटेंशंस यहाँ पे क्या रहे हैं, क्या नहीं रहे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर आपको इन डिटेल एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस मॉडल ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि चाइना ने जिस तरह से इस ओबोर को स्टार्ट किया है उसकी वजह से चाइना को कहा गया है डेवलपमेंट इंजन। चाइना इज़ वर्किंग लाइक ए डेवलपमेंट इंजन। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने चाइना की इकोनॉमी के सिर्फ एक शाइनिंग पार्ट की ओर ही देखा है, बट देयर इज़ अ डार्क पार्ट ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। कौन कौन से डार्क पार्ट हैं उसकी ओर अगर अपन बात करें तो चाइना में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो यहाँ पे ज़्यादा है, 2016 में ज़्यादा था। चाइना ने जैसे पोवर्टी को मिटिगेट करना है, वॉर अगेंस्ट पोवर्टी चाइना ने चलाया था, वैसे ही चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को भी अबॉलिश करने की बात कही, रिमूव करने की और मिटिगेट करने की बात कही। चाइना इसमें आगे बढ़ भी रहा था 4.02 से 3.9, 3.8, ठीक है, लेकिन 2019 में 3.8 पर ही कांस्टेंट रहा और आज की डेट में क्योंकि कोरोना की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है कहीं स्टॉप हो गई हैं, ठीक है, उनको हार्म पहुंचा है। दैट्स वाई चाइना में एक्सपेक्टेड है कि 2024 तक भी चाइना में यही 3.8% की रेट से अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड पॉइंट अगर अपन देखें तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ दैट चाइनीज़ ज्योग्राफी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डेमोग्राफिक पॉइंट्स विच आर रूरल एंड अर्बन। चाइना में आपको एक क्लियर कट डिवीज़न देखने को मिलेगा रूरल एंड अर्बन में, डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड में, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फार्मर लाइक सिचुएशन और पुअर्टी में, ठीक है। तो यहाँ आपको चाइना में एक क्लियर कट डिवीज़न देखने को मिल रहा है और यही क्लियर कट डिवीज़न इकोनॉमिक ग्रोथ की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इनइक्वालिटी को शो करने का काम करता है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर अ डेवलप्ड कंट्री और अ सुपर पावर। एक सुपर पावर में इक्वल डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। स्टूडेंट्स, जैसे ही चाइना में प्राइवेटाइजेशन आया, डेंग जियाओपिंग ने जिस प्राइवेटाइजेशन
की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, स्टार्ट किया था, उसकी वजह से चाइना में इनइक्वालिटी डे बाय डे क्रिएट होती जा रही है और इंक्रीज होती जा रही है। क्रिएट करना भी एक रॉन्ग वर्ड होगा, इंक्रीज हो रही इज मच बेटर वर्ड, ठीक है। चाइना में डे बाय डे जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। जब सब कुछ गवर्नमेंट ओन्ड था, स्टेट ओन्ड था, तब स्टेट जो था मोर और लेस इक्वल डिवीज़न करती थी, ठीक है। लेकिन जब से प्राइवेटाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ है 1982 से, डेंग जियाओपिंग ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद से इनइक्वालिटी इंक्रीज होती जा रही है। प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर्स जो हैं वो मोर एंड मोर इन्वेस्ट करके मोर एंड मोर मनी अर्न कर रहे हैं, जबकि जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है वो आज भी एज अ वर्कर ही चाइना में काम करते देखे जा सकते हैं। 2018 का गिनी इंडेक्स देखें स्टूडेंट्स, गिनी इंडेक्स जो है वो इनइक्वालिटी को मेजर करने का काम करता है। ये चाइना की स्टेट गवर्नमेंट ने जो डेटा प्रोवाइड किए हैं उसी को एनालाइज करने का काम करता है। और गिनी इंडेक्स में अगर अपन देखें देन चाइना रीच्ड अ स्कोर 46.8 पॉइंट्स, जो कि चाइना में इस इनइक्वालिटी को शो करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं कि चाइना में स्टूडेंट्स अगर अपन देखें तो वर्कर्स की जो सिचुएशन है वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। चाइना में एक एस्टिमेट माना जाता है, वेरियस आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए कि चाइना में वर्कर्स की सिचुएशन जो है वो वैसी ही है जैसी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की थी। आप लोग लास्ट ईयर पढ़ भी चुके हैं चैप्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो आपको मालूम होगा, आप लोगों को मुझे बताने की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। आगे अगर अपन देखें इंडो चाइना रिलेशनशिप के बारे में देखें स्टूडेंट्स, इंडो चाइना रिलेशंस जो हैं वो भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, अप एंड डाउन आते रहे हैं इन इंडो चाइना रिलेशनशिप में भी। बात करते हैं 1949 से। 1949 में चाइना को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, सॉवरेनिटी चाइनीज़ गवर्नमेंट को मिली थी, दैट टाइम इसको सबसे पहले अगर किसी ने रिकॉग्निशन प्रोवाइड की थी तो वो इंडिया एंड यूएसएसआर था। इंडिया और यूएसएसआर ने चाइना को एज अ नेशन रिकॉग्निशन प्रोवाइड की थी, ठीक है। देयर आफ्टर 1954 में, है ना, 1954 में इंडिया चाइना के बीच में पंचशील एग्रीमेंट हुआ। आप लोगों को मालूम है पंचशील एग्रीमेंट क्या होता है, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ इन द चैप्टर ऑफ कोल्ड वॉर, एरा ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके चाइना ने इंडिया को एज अ थ्रेट देखा और चाइना ने इंडिया को एज अ कॉम्पिटिटर देखा, और इस कॉम्पिटिटर के फॉर्म में इंडिया को देखने की वजह से चाइना की इंडिया के टूवर्ड्स जो एटीट्यूड था वो चेंज होने में इतना टाइम नहीं लगा। जैसे ही दलाई लामा इंडिया में आते हैं, दलाई लामा इंडिया में असाइलम लेते हैं, वैसे ही इंडिया और चाइना की एनिमिटी और ज़्यादा इंक्रीज होती है। और in 1962 China attacked on India. India was not prepared और India was not mentally prepared for this attack. इंडिया एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि चाइना कभी इंडिया पे अटैक कर भी सकता है, क्योंकि हम लोगों ने तो पंचशील एग्रीमेंट साइन किया हुआ था, और पंचशील एग्रीमेंट का ही एक पार्ट था दैट वी विल नॉट अटैक ऑन ईच अदर एंड वी विल सॉल्व ऑल द डिस्प्यूट्स बाइलैटरली ऑन अ कॉमन फोरम, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने ऐसी कभी एक्सपेक्टेशन थी नहीं। चाइना ने सडन अटैक इंडिया के ऊपर किया, और क्योंकि इट वाज अ सडन अटैक दैट्स वाई चाइना ने इंडिया की एक बहुत बड़ा लैंड अक्वायर कर लिया। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से एरियाज चाइना ने अक्वायर किए हैं, ठीक है। बाउंड्री इश्यूज हम लोगों के पास आज भी बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग पहले कौन कौन सा एरिया चाइना ने अक्वायर किया था उसकी बात कर लेते हैं, और लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द बाउंड्री इश्यूज़, ठीक है। हाइपोथेटिकली दिस इज़ इंडियन मैप, मुझे आता नहीं क्लियर बनाना, लेकिन हाँ मैं आपको एक ब्रीफ रफ आइडिया दे रही हूँ मैं आपको। दिस इज़ बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यहाँ आते हैं, ठीक है। तो चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया। अटैक जो था वो अरुणाचल प्रदेश, जो आज का नेफा, अरुणाचल प्रदेश जो पहले नेफा कहलाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहलाता था पहले। इंडिया ने बिफोर 1962 नेफा को कोई स्टेटहुड प्रोवाइड नहीं किया था, इसको नेफा ही कहते थे, अरुणाचल प्रदेश को नहीं था। चाइना ने इसको अक्वायर किया, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट, मैं पूरा नहीं कह रही हूँ कि पूरा अरुणाचल प्रदेश चाइना ने ले लिया, लेकिन हाँ इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट चाइना ने अक्वायर किया, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ से होते हुए चाइना ने इनके भी लैंड को
पार्शली अक्वायर करने का काम चाइना ने किया। और स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन बोथ कंट्रीज। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ने ये एनालिसिस अपना प्रेजेंट किया है। अर्लियर हमारा इम्पोर्ट चाइना से ज़्यादा था, लेकिन अब हम लोगों ने अपने इम्पोर्ट्स को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, जबकि हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हुए हैं। रीज़न चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे स्वदेशी मूवमेंट हो, या फिर कुछ और, लेकिन हाँ एक पॉजिटिविटी है कि हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हुए हैं, जबकि इंडिया एम्पावर होते हुए लिटिल बिट उसने डिक्रीज़ किया है अपने इम्पोर्ट्स को। स्टूडेंट्स, सिंस 2018 informal annual summits are started between both countries. There is a difference between formal and informal. Actually जो फॉर्मल समिट्स होते हैं उसमें एजेंडा वेल डिसाइडेड होता है, कौन कौन से पॉइंट्स को लेकर डिस्कशन होगा ये वेल डिसाइडेड होता है, जबकि जो इनफॉर्मल समिट्स होते हैं इसमें एजेंडा डिसाइडेड नहीं होता है। एक्चुअली जो इनफॉर्मल समिट है वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में कल्चरल सोशल हेरिटेज को समझने के लिए और कैसे दोनों के बीच में कॉपरेशन मोर एंड मोर इंक्रीज हो सकता है, रिलेशनशिप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम लोग किन किन प्लेटफॉर्म्स को लेकर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे के बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं, इन बातों को लेकर डिस्कशन होता है। लेकिन हाँ एजेंडा वेल डिसाइडेड नहीं होता है। 2018 का जो फर्स्ट समिट था वो मोस्ट डिफेम्ड सिटी ऑफ चाइना में हुआ था, विच इज वुहान। और सेकेंड अगर अपन देखें, सेकेंड इनफॉर्मल समिट हुआ था तमिलनाडु में, और तमिलनाडु का एक रीजन है ममल्लापुरम, जिसको महाबलीपुरम भी कहते हैं। महाबलीपुरम इसीलिए चूज़ किया क्योंकि इसकी अपनी एक हेरिटेज है, लेगेसी है, और ऐसा माना जाता है दैट इन एंशिएंट टाइम महाबलीपुरम के साथ चाइना के अच्छे ट्रेड रिलेशनशिप थे। दैट्स वाई महाबलीपुरम की एक सॉफ्ट पावर को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकेंड इनफॉर्मल समिट विच वाज हेल्ड इन 2019 उसके लिए महाबलीपुरम को चूज़ किया, विच इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। लोग कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, 12th बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, वेटेज ज़्यादा है, इस वजह से मैंने जो भी पिक्चर्स आपके बुक में अवेलेबल थी उनको और ज़्यादा अच्छे से देखने की कोशिश की है। ये मैं आपको एक एक पिक्चर जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगी। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। एक्चुअली चाइना के ऊपर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से ज़्यादा अटैक होते थे, इस वजह से चाइना के जो रूलर थे, एंशिएंट रूलर जो थे, उन्होंने चाइना में एक वॉल बनवाई अपनी सिक्योरिटी के लिए। और ये वॉल जो थी क्योंकि बहुत बड़ी थी, और आप देख ही सकते हैं अभी भी चाइनीज़ ये वॉल माना जाता है कि वो स्पेस से भी आप देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई 1987 में इसको एज अ यूनेस्को साइट, वर्ल्ड यूनेस्को साइट में लिस्ट किया गया। और ये चाइनीज़ जो वॉल है ये 7 वंडर्स में से एक है। स्टूडेंट्स, अगर अपन इस पिक्चर की बात करें तो इस पिक्चर का जो फर्स्ट पिक्चर है, ठीक है, तो वो आप इंडिकेट कर रहा है माओ जेडोंग की ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम को, जबकि ये पिक्चर इंडिकेट कर रही है मॉडर्नाइजेशन इन चाइनीज़ इकोनॉमी। हु जिनताओ चाइनीज़ लीडर रह चुके हैं और यही शो कर रहे हैं कि कैसे ये रेड बुक रेड टाई में कन्वर्ट हो चुकी हैं। ये फ्रॉम ट्रेडिशनलिज्म टू मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, वेस्टर्न मॉडल को भी फॉलो करने का काम हमने किया है। तो सेकंड फोटो जो है आपका वो इंडिकेट कहाँ कहाँ करता है, सबसे पहले वेस्टर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन को इंडिकेट करता है, डिपिक्ट करता है आपका सेकंड पिक्चर। हम लोग बात कर रहे हैं इस साइकिल की। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2020 के एनुअल बोर्ड एग्जाम CBSE में ये पिक्चर 5 मार्क का पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया था। है क्या, एक बार ब्रीफली बता दूं। ये चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कम्युनिस्ट पार्टी कोई भी देखें उसका सिंबल आपको ऐसा ही दिखेगा। मोर और लेस कुछ एक इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन मोर और लेस ऐसा ही रहता है।
तो ये तो चाइना की आइडियोलॉजी को इंडिकेट कर रहा है, और सेकंड व्हील जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि कैसे चाइना ने वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ अपने आप को मर्ज कर लिया है। और ये साइकिल क्यों इन्होंने ली, क्योंकि चाइना इज़ अ वेरी बिग यूज़र ऑफ बाइसिकल्स, चाइना बहुत ज़्यादा बाइसिकल्स यूज़ करता है। ये देखें, फोर्थ पिक्चर की और बात करते हैं हम लोग। आपको यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था टिल 1991 इंडिया वाज नॉट इंटरेस्टेड इन आसियान, ठीक है। लेकिन 1991 के बाद हमारे पास कोई भी एक सुपर पावर हमारी अलाई नहीं रही थी, अमेरिका के साथ भी हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे दैट टाइम। सो इंडिया को अपने जो फ्रेंडशिप सेंटर्स थे वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट थी, और इंडिया ने आसियान की ओर ध्यान दिया। लेकिन आसियान की ओर ध्यान तो दे दिया, पर आसियान इकोनॉमीज़ के साथ इंडिया कॉम्पीट करने की सिचुएशन में नहीं था। आपको यहाँ पे दिख रहा है कंपटीशन, हम आसियान के मेंबर हैं, ठीक है। तो ये आसियान है, और आसियान के साथ अगर अपन इंडिया कहीं पर भी इंगेजमेंट अपना इंक्रीज़ करता है तो इंडिया को भी एक टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, और यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न था। ईस्ट आसियान नेशंस जो आसियान को इंडिकेट कर ही रहा है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे वी विल हैव टू गेट यूज टू इट, हमको इसकी आदत डालनी होगी, इस कंपटीशन की आदत डालनी होगी, बिकॉज बिफोर 1991 हमारे यहाँ पे इकोनॉमी का कंजर्वेटिव मॉडल जो था वो ट्रेंड में था। लेकिन इस कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ को चेंज करके हम लोगों को अडॉप्ट करना पड़ा कंपटीशन को, लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को, जिसकी आदत पहले हमारी इंडस्ट्रीज़ को नहीं थी। So student, this is the end of this chapter 4 which is alternative centers of power. अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी गगवानी साइनिंग ऑफ, सी यू सून, थैंक यू।